अब बताओ CAB क्या है, कितना है? What will be the effective capacitance between A and B? What happens in a circuit when 2 points which practically possess some potential difference, but because of some technical error, if they are connected by a zero voltage path, so what will happen? Till now they had potential difference, वहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम था ना भाई. अब तुमने टेक्निकली या फोर्सफुली बाय एरर दोनों को कनेक्ट कर दिया, जीरो ड्रॉप हो गया, तो दोनों के बीच में तो अब एनर्जी स्टोर हो नहीं सकता. अब वो एनर्जी जाएगा कहाँ? आग जो लगता है क्यों लगता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगा कहाँ? जैसे सडनली 2 पॉइंट्स जो जिसमें एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, चार्ज फ्लो कर रहा, सडनली बाई मैकेनिकल एरर और कुछ भी हुआ, वो इंटरकनेक्टेड हो गया, 0 वोल्ट में आ गया, तो फिर वो तो डिजर्व नहीं कर रहा. बीच जो स्टोर्ड एनर्जी है वो एनर्जी क्या होगा? वो एनर्जी रिलीज होगा. वो एनर्जी रिलीज होगा तो वो हीट एनर्जी जनरेट करेगा और तब काम तमाम. तो शॉर्ट सर्किट इज बेसिकली द वन which indicates two distinct points of a circuit which are interconnected, but in that connection it does not deserves any potential drop of existence. उसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं. बात समझ में आ रहा है ना? तो है saying that zero যেমন আমি যে বলছি যে আমি চার্জ নিয়ে যাচ্ছি একটা ক্যাপাসিটরের মধ্যে দিয়ে চার্জ নিয়ে যাব, তো when Q charge is allowed to flow through the capacitor plate which is having dielectric in between them, so obviously it will store charge. চার্জ তো জমা থাকবে, তো চার্জ স্টোর হওয়া মানে হলো প্লাস কিউ স্টোর হলো মাইনাস কিউ স্টোর হলো, তাহলে এনার্জি কনজিউম করলো, তো আমরা পড়বো ওই ব্যাপারটা. তো এনার্জি যেটা এ স্টোর করবে দ্যাট ইজ কিউ স্কোয়ার বাই 2c. ঠিক, এবার তুমি এই চার্জটা বেরিয়ে যাচ্ছে, এর হঠাৎ করে তুমি করলে কি, এখানে একটা ব্রিজ কানেক্ট করে দিলে, কন্ডাক্টিং ওয়্যার ব্রিজ লুপ. এবার চার্জের ক্ষেত্রে কি হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো অল্টারনেট পাথ নেই, চার্জ ইজ বাউন্ড টু ফ্লো থ্রু দিস कंज्यूमिंग एनर्जी. वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ, यहाँ एनर्जी डिपॉजिट हुआ, जमा हुआ, तो सिस्टम जो है, जो प्रोवाइडर है बैटरी, वो वर्क किया. अचानक तुम उसको एक पैरेलल रूट. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा, तुम लोगों को बात मेरा सुनाई दे रहा है? एम आई ऑडिबल? आई डोंट थिंक सो. এরা কিছু বলছেও না. Now tell me the, হ্যাঁ ওটা আবার করে বুঝিয়ে দেবো পরে. Tell me the C effective between A and B. Tell me the C effective between A and B. তোমরা 3c/4 এর পাওয়ারে মেজরিটি দেখছি 3c/4. আনসার 3c/4 ই হবে, কারেক্ট. এটা পজিটিভ টার্মিনাল, এটা নেগেটিভ টার্মিনাল, চার্জ কিউ এলো, এইটা একটা জাংশন, সো দিস জাংশন ক্যান अगेन बी नेम्ड एज ए, राइट. ए से आगे चल के इसको अगर P कहें तो यहाँ से यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि ये P अगेन, और फिर अगर ये B है तो इस जंक्शन को भी B कह सकते हैं. तो A to P जो है दो पैरेलल ब्रांच है, एक है C और C का सीरीज दैट इज C/2 और उससे ये पैरेलल, सो C प्लस C/2 इज 3c/2. ये अगर 3c/2 आया तो बिल्कुल ये भी 3c/2 है. सो 3c/2 एंड 3c/2 आर इन सीरीज, सो 3c/4. एब्सोल्युटली करेक्ट. अब देखो यहाँ मैंने क्या किया, 4 कैपेसिटर लिया, 4 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स टेकन इन द नेक्स्ट डायग्राम, और फिर वहाँ एक स्विच का भी बात कर दिया ना.
diagram is representing a switch in this arrangement. So I want to know the C effective, that is CAB, A और B के बीच में C effective पता करना है. So what will be the value of C effective both before and after closing the switch? स्विच क्लोज करने के पहले C effective क्या होगा और स्विच क्लोज करने के बाद C effective क्या होगा. दोनों, अब इनिशियल डायग्राम में स्विच ओपन है, अब C effective क्या होगा बिटवीन A एंड B, और फिर स्विच को क्लोज कर देंगे तो तब फिर न्यू इफेक्टिव C क्या होगा. सी बिफोर, जब केस वन व्हेन एस इज ओपन, व्हेन एस इज ओपन, स्विच जब ओपन है उस समय का डिस्कस करेंगे. तो ये अनचार्ज रहेगा, तो चार्ज जो है Q दैट विल फ्लो लाइक दिस, राइट. When switch is open, that time the charge distribution will take place this way. So undoubtedly out of 4, 3 capacitors will be storing charge, 1 will remain uncharged, and CAB in this case will be C by 3. ठीक है. अब जब केस 2 पे जाएंगे, केस 2 when S is closed, when S is closed, तब जो होगा ये पहला कैपेसिटर, उसके बाद 2 कैपेसिटर पैरेलल स्विच क्लोज होने के बाद, एंड देन अगेन द थर्ड वन इज इन सीरीज. तो ये हो गया C, इधर ये दोनों को मिला देंगे तो 2C और ये C. ठीक है. तो अल्टीमेटली हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं CAB एज इट इज द series of C by 2 into 2C divided by C by 2 plus 2C. तो ये कितना हो गया 2C by 5. ताई बोली चिले. It will be, after simplifying, it will be 2C by 5, because after closing the switch, when we will close the switch, that time Q will be getting distributed this way. ये Q जो भी होगा वो आगे चल के यहाँ से 2 पैरेलल ब्रांच में बट के फिर यहाँ कन्वर्ज होके फिर Q होके आएगा. सो दैट 4 कैपेसिटर में फर्स्ट वन इन सीरीज, देन नेक्स्ट 2 आर इन पैरेलल, और फिर जाके फाइनली सीरीज. All 4 capacitors are identical, there is a switch. फिर से वही क्वेश्चन है, find C effective between A and B in both cases. First one when switch is open, and then in second case when switch will be closed. पहला केस में स्विच ओपन है, फिर फाइनली स्विच ক্লোজ होने पे C ইফেক্টিভ क्या होगा. তখন এই ব্রাঞ্চটায় চার্জ যাচ্ছে না, কিন্তু এই যে কিউ এলো, কিউ তো এটা আর এটাই যাবে, তো এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে এটা তো এই ব্রাঞ্চটা নেই, এটা ओपन ब्रांच, ये तो खुला हुआ पाथ है, इसमें चार्ज नहीं जाएगा, लेकिन चार्ज ऊपर नीचे से जाएगा. तो ये दोनों पैरेलल है ना. मान लो ये Q/2 गया, ये Q/2 गया, फिर दोनों यहाँ Q/2 मार्ज होके Q, तो फिर हुआ क्या, यहाँ इन दोनों से सेम Q, ये दोनों सीरीज, और उसके पहले ये दोनों पैरेलल, तो ये हो गया 2C और ये हो गया C by 2. तो C डैश हो गया 2C इंटू C by 2 डिवाइडेड बाई 2C प्लस C by 2. तो फिर वही हो गया 2C by 5, ये शुरू में है ना, जब स्विच ओपन है तब ये 2C by 5. ये केस 1 when S is open, when S is open that time C dash is this one, right? क्लियर हो रहा कि नहीं? नहीं, क्लोज में सेम नहीं होगा. अब जब क्लोज करेंगे, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, जब ये खुला हुआ था तो ये पोटेंशियल ड्रॉप एवेल कर रहा था,
देयर वाज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज विदाउट कैपेसिटर और तो कोई सेकेंड ऑप्शन था नहीं ना चार्ज को, तो चार्ज थ्रू कैपेसिटर जाएगा तो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज करेगा ही। अब जब क्लोज कर दिए तो चार्ज को ये जीरो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज वाला पाथ मिल गया, दिख गया, तो वो अब ऊपर और नीचे वाला कैपेसिटर से नहीं जाएगा। दैट मीन्स वंस यू आर क्लोजिंग, व्हेन एस इज क्लोज्ड, व्हेन एस इज क्लोज्ड, अब पूरे सर्किट में सिर्फ ये ऊपर वाला ब्रांच में कुछ है ही नहीं, अब जो है सो ये दोनों। सो ये हो गया ए बी, यानी कि अब ये हो गया C/2। आफ्टर क्लोजिंग द स्विच द इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो गया C/2। क्लियर हो रहा है? फर्स्ट केस में और एक बार बोलबो। अच्छा, इन फर्स्ट केस व्हाट हैपेंस व्हेन स्विच वाज ओपन, that time suppose this was A given being the terminal point, so I can mark this one also A. Now from A onwards there are 3 branches, but this branch is having no meaning, it is an open branch, so charge cannot enter into this path. So charge flow can be taken place through these 2 paths. In both these 2 paths we are having capacitors and they are further going connected to a one common point, so I can say these 2 are parallel. So C and C parallel is 2C. So between this and this, up to let this is be the intermediate point P. So A 2P 2C, and then P onwards, this C and this C are in series. So collectively, these 2 taken together, I can say C/2. So then I have taken 2C and C/2 in series.